Holidays-nale, adu namma GT Holidays da. GT Holidays, South India's #1 travel brand. நவம்பர் 3ஆம் தேதி 2021 பெட்ரோல் மீது இருக்கக்கூடிய வரியை 5 ரூபாய் குறைச்சாரு மோடி ஐயா. டீசல் மீது இருக்கக்கூடிய வரியை 10 ரூபாய் குறைச்சார். அதே மாதிரி மே 2021 அது நவம்பர் 2021 மே 2022 மத்திய அரசு திரும்பவும் பெட்ரோல் மேலே இருக்கக்கூடிய வரி 9 ரூபா 50 பைசா குறைச்சாங்க. டீசல் மேலே 7 ரூபா குறைச்சாங்க. அதே நாள் எல்பிஜி உஜ்வலா கஸ்டமர்ஸ்க்கு 200 ரூபா மானியம் கொடுக்கறதாவும் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. सिर्फ एक हमारे तमिल आई डोंट नो इफ यू आर गेटिंग द ट्रांसलेशन हो रहा है ठीक. मगर सर தமிழ்நாட்டில் தேர்தலுக்கு முன்னாடி டிஎம்கே அரசமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய தேர்தல் மேனிஃபெஸ்டோவில் 5 ரூபா பெட்ரோலில் நாங்கள் குறைப்போம், எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சு அரசமைச்சா 5 ரூபா குறைப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி டீசலில் 4 ரூபா குறைப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை தவிர சார் ஐ எம் கண்டினியூயிங் சார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு அதே மாதிரி Sir, I am not allowed to talk. I don't want interruptions. State government அதே மாதிரி 100 ரூபா எல்பிஜி சிலிண்டருக்கு சப்சிடி மானியம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கூட சொன்னாங்க. சார் கொஞ்சம் ஸோ 100 ரூபா மானியம் கொடுக்கறதாகவும் வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க. அதே சமயம் சார் இது ரெண்டும் நடந்துருச்சு. சார் I can't shout sir, I'm very weak. சார் this is outrageous sir. அவங்க பேசும்போது நான் கேட்கணும், அவங்க பேசுற ஒவ்வொன்றையும் நான் கேட்கணும். ஆனா பதில் கொடுக்க வந்த போது தடுத்து நிறுத்துறது நல்ல அரசியல் இல்ல. நான் கொடுக்கிற பதில கேட்டுதான் ஆகணும். நீங்க சொன்னதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் இப்ப வரைக்கும். माननीय मंत्री जी एक मिनट if I'm like before I can talk shouting. I am not able to shout now sir. आपकी बात ही रिकॉर्ड में जा रही, उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही. This is purposely trying to disrupt me because I'm telling the truth. If they have objection, they should speak afterwards. Thank you. இன்னும் கேட்டு போங்க. Thank you. Sir, what is this sir? ये क्या है सर? सर क्योंकि तमिल में इतना स्पष्ट बोले
कि हमारे सरकार बच्चे के पेंसिल के ऊपर, दूध के ऊपर, मैं जरूर इसको भी तमिल में कहना चाह रही हूं सर, चाहे वो इधर नहीं है बाहर जाके सुन लें, वो गलत बोलने वाले विषय उनके मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिस किया उन्होंने वो नहीं किया, ऊपर से हमसे पूछ रहे। और ये भी एक दुख की विषय में बोलना चाह रही हूं, जब पत्रकार लोग जाकर के उनसे पूछे आपके मैनिफेस्टो में आपने बोला आप क्या कम नहीं किया, क्यों नहीं किया, केंद्र सरकार 2 बार ये कर चुके हैं, आप क्यों नहीं किया, उस समय எங்க மத்திய அரசு குறைச்சிட்டாங்க வரிய, நீங்க ஏன் குறைக்கல, ஒரு தரம் இல்ல 2 முறை குறைச்சிட்டாங்க, நீங்க ஏன் குறைக்கலன்னு கேட்டதுக்கு அவங்க அமைச்சர் சொல்றாங்க பதில், நாங்க ஏதாவது டேட் சொன்னோமா, நாங்க சொன்னோம் அவ்வளவுதான், क्या हमने कुछ डेट दिया है क्या, we said it, that's all, तारीख नहीं बोला ना जब कट करेंगे। अरे मैनिफेस्टो में बोला केंद्र सरकार 2 बार काटा, आपने कम नहीं कर रही हो, और जब आप पूछ रहे हैं मीडिया आप जवाब ये दे रहे हैं कि हमने डेट थोड़ी ना दिए, करेंगे, ये जवाब है सर। और वो लोग बोल रहे हैं मुझे एरोगेंट, आई डोंट माइंड इफ यू वांट टू कॉल मी एरोगेंट, मगर जवाब जनता के लिए जो आज मैं बोलने वाली थी क्रोकोडाइल टीयर्स, मगर शायद वो ऑब्जेक्शनेबल लिस्ट में पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री में निकाला गया, मगर वही हो रही है। முதல கண்ணீர் வடிச்ச கதை இது, மத்திய அரசு குறைப்பாங்க ஆனா நான் குறைக்க மாட்டேன், டேட் சொன்னேனா, ஓகே சார்। और दूसरा सर ये भी वो लोग बोले, और वो भी उनके हाउस में भी बोले कि डीजल का तो हम करने के लिए बोले मगर हम कर नहीं सक रहे हैं क्योंकि हमारे पास कितने लोग डीजल उपयोग कर रहे हैं नंबर नहीं है, इसीलिए हम जो वायदा दिया कम करने के लिए वो कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कि हमारे पास नंबर नहीं है। सो आखिर कुछ भी कटौती नहीं हुई, केंद्र सरकार के द्वारा 2 बार कटौती होने के बाद भी वो कम नहीं किए, और आज खड़े होकर के हमसे बार बार पूछ रहे कि पेट्रोल डीजल एलपीजी को भी सब्सिडी देने के लिए बोले कि हम नहीं देंगे। सो மத்திய அரசு மேல குற்றச்சாட்டு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க உங்க வாக்குறுதியை ஏன் நிறைவேற்றலன்றதை எடுத்து சொல்லணும்। 2 முறை நாங்க குறைச்ச பிறகு கூட நீங்க குறைக்கல, और इवन वर्स आज पाल वेला कुறைஞ்சு जास्ती பண்ணிட்டீங்க, दूध के ऊपर आपने डाल दिया जीएसटी, कहने वाले तमिल डीएमके के नेतागण को मैं पूछ रही हूं, मान लीजिए हमने क्लियरली बोले ब्रांडेड दूध के ऊपर लगेगा, लूज में दूध खरीदो कुछ जीएसटी नहीं है, और केंद्र सरकार को इतना टिप्पणी करने वाले डीएमके सरकार क्या किया है सर, वो ब्रांडेड आइटम्स के ऊपर मैं बोल रही हूं, लूज के ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। ये लीजिए, मान लीजिए 1 केजी का दही खरीदना है, डीएमको को बताना है तो उनकी भाषा में बताओ। हाँ, மத்திய அரசு மேல இவ்வளவு கோமா ஜிஎஸ்டி போட்டுட்டீங்கன்னு சொல்ற டிஎம்கே, பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ்க்கு மேல தான் டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சில், அது மத்திய அரசு போடல, மோடி ஐயா போடல, ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் உங்க மந்திரியும் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல தான் நிர்ணயம் ஆச்சு, அதுல 5% தான் பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ்க்கு மேல வரி போடணும்। இன்னைக்கு பப்ளிக்கா நியூஸ் பேப்பர்ல வந்திருக்க ஐட்டம் உங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கிறேன், 1 கேஜி தயிர் வாங்கினா 100 ரூபா பழைய ரேட்டு, அதுக்கு மேல 5% டாக்ஸ் போட்ட பிறகு அது 105 ரூபா ஆகணும், ஆனா நீங்க என்ன விலைக்கு விக்கிறீங்க 120, 5% ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் போட சொல்லிச்சு, ஆனா நீங்க எவ்வளவு போடுறீங்க 1। ரெண்டாவது லஸ்ஸி, அதாவது இனிப்பா இருக்கக்கூடிய மோர் 27 ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டியது பழைய ரேட்டு, 5% ஜிஎஸ்டி டாக்ஸ் போட்ட பிறகு பிராண்டட் ஐட்டம்
போட்ட பிறகு அது 28 ரூபா 35 காசா இருக்கணும். ஆனா நீங்க 30 ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க. ஜிஎஸ்டி மேல பழி போட்டுட்டு நீங்க ஹையர் ரேட்டை போடுறீங்க, மக்களுக்கு பாரம் சுமத்துறீங்க. அதே மாதிரி பட்டர் மில்க், மோர், அதே மாதிரி மோர் 10 ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டியது மோர், அது மேல 5% டாக்ஸ் போட்டா அது 10 ரூபா 50 காசு ஆகணும். 12 ரூபாய்க்கு இன்னைக்கு விற்கிறீங்க. இன்னைக்கு அது எப்படி நியாயம்? ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மேல போட்டுக்கிட்டு நீங்க அதிக விலைக்கு விற்கிறீங்க, பழி ஜிஎஸ்டி மேல. ஆனா ஜிஎஸ்டினா மத்திய அரசுன்னு சொல்றீங்க. மத்திய அரசு இல்ல, உங்க அமைச்சரும் தான் உட்கார்ந்து இருந்தாரு அதே ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல. ஏகமானதாக எல்லாரும் சேர்ந்து யுனானிமஸா எடுத்த டிசிஷன். இதுல புதுசா ஏழைகளுக்கு கஷ்டம் கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணுமே பண்ணல சார். சோ ஒவ்வொரு ஐட்டம்லயும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் 5% போடுங்க பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ்க்கு மேலன்னா, நீங்க 5%க்கு மேல போட்டுட்டு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மேல பழி சொல்றீங்க. இது தப்பு. Sir, now I come to the general issues of GST. I want to tell you the recent decision taken in the GST Council on milk or any other item have all been discussed by the GST Council in full detail. I just want to highlight the fact that any GST Council decision is a decision of the GST Council in which all the ministers are present. 2/3 उनका वोटिंग होता है, 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट का. वोटिंग नहीं हुआ, कंसेंसस में डिसीजन हुआ. मैं सिर्फ ये बात रखना चाह रही हूं कि इसको एंटी, हाँ, राज्य मंत्री, राज्य वित्त मंत्री गण बैठते हैं. सो इसको एंटी पुअर बोलने वाले, 1 मिनट में आई वांट टू एक्सप्लेन दैट. लेवी is only on pre-packaged items, labeled goods, and not on loosely sold items. So poor people के ऊपर कुछ इसका असर नहीं है. Similarly, 25 kgs पैकेट के ऊपर भी हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि होलसेल व्यापारी से व्यापारी ले आकर के बिना टैक्स उनके किराना शॉप में रखे छोटे छोटे क्वांटिटीज में गरीब के लिए बिकने वाले कारण के लिए वो जब 25 kgs लेते हैं उसके ऊपर भी टैक्स नहीं है. होलसेलर को वो उधर से ले आकर के उनके दुकान में रखेंगे. इसीलिए 25 kgs का पैकेट के ऊपर भी लूज में बिकने के लिए उनके ऊपर भी टैक्स नहीं है. इसीलिए मैं ये बात ज़रूर कहना चाह रही हूँ, लूज में दूध हो, चावल हो, पफ्ड राइस हो, बार्ली हो, ये सब के ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं है. गरीब को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल में इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया. सिर्फ पहले से पैक होकर के उसमें कुछ ब्रांड का नाम रजिस्टर्ड ब्रांड है, इनके ऊपर ही टैक्स है. आप एक बोरी में ले आओ, बिको, इसके ऊपर कुछ टैक्स नहीं है. ये याद रखना चाहिए. There is no discrepancy and every minister has sat through it. I want to highlight, sir, I want to tell you, sir, इस डिसीजन में हम कैसे पहुंचा. इसमें 3 लेवल पर डिस्कशन हुआ. फिटमेंट कमेटी में अधिकारीगण बैठते हैं, उसमें राजस्थान से भी अधिकारी है, वेस्ट बंगाल से भी अधिकारी है, तमिलनाडु से है, बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, गुजरात से, ये सब अधिकारीगण बैठते हैं. उसके बाद ये लोग के इंफॉर्मेशन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास आती है. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरला, उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार मिनिस्टर्स बैठते हैं. वो इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर इसको ले आते हैं काउंसिल में. इसमें जीएसटी काउंसिल में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दोबारा इसके ऊपर भी है. उसमें पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला,
ये सब भी भागीदारी है। इतने लेयर के चर्चा के बाद, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बाद, दूसरा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बाद निर्णय जब लेते हैं, इन सभी मंत्रीगण साथ बैठ करके एक भी आवाज ना नहीं बोले, सब माना कि ये करेक्शन करना चाहिए। ठीक है सर। सो टोटली एक भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था। सुप्रिया जी इधर नहीं है अभी, वो बोले दूध का दूध होना चाहिए, पानी का पानी। बोलो कौन इनकार किया, कौन क्या कहा? कोई कुछ नहीं के, हर लेवल में हम बढ़ करके आया। इससे लीकेज कम करने के लिए हमने निर्णय किया, मगर लीकेज कम करने के बहाने में गरीब के ऊपर कुछ भी बोझ नहीं डाला। उनका पहले जैसे ही मिलेगा, सिर्फ ब्रांडेड आइटम्स के ऊपर ही हमने टैक्स डाले। सर, ये क्रिमेटोरियम के ऊपर, स्मशान घाट के ऊपर बात बोलते हैं और व्यंग से ये भी बोलते हैं कि अगले शव के ऊपर डालोगे क्या टैक्स। मुझे दुख लगता है ऐसे बयानबाजी करने वाले के ऊपर। उनके मंत्रीगण भी इधर बैठे हुए हैं जीएसटी काउंसिल में। कोई, मैं सिर्फ बैठ करके निर्णय नहीं करती, और जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय होता है वो केंद्र सरकार के निर्णय नहीं है, जीएसटी काउंसिल के निर्णय है। और जब बात क्रिटिसिज्म करने के लिए चाहिए, वो लगा लो केंद्र सरकार और मोदी जी के ऊपर। जीएसटी में ऐसे कर दिया, जीएसटी में ऐसे कर दिया। जीएसटी काउंसिल में सभी प्रांतों का, राज्यों का मंत्रीगण बैठते हैं, सब इकट्ठा बैठ करके निर्णय लेते हैं। वो उनका निर्णय भी है, वो भी जा करके उनके स्टेट में बोलना है, मैं भी बैठा उसमें, मैं भी सहमत बरा इसमें। वो क्यों नहीं बोलते हैं? अंदर एक सहमत बरा दो और बाहर जाकर के केंद्र सरकार के ऊपर डाल दो। ये गलत है। अंदर तो 3 लेवल में आपने हां भरवाया, आज आकर के ये बात ऐसे पलट रही हो जैसे कि मोदी जी ने निर्णय लिया। जीएसटी काउंसिल में आप सब बैठे हैं जी। इसीलिए ये गलतफहमियां 2 विषय में जरूर समझती हूं मैं दूर करने का। क्रिमेटोरियम के ऊपर सर, there is no GST on crematorium, funeral, burial or on mortuary services. ये कोई इन आइटम्स के ऊपर, क्रिमेटोरियम, फ्यूनरल, बरियल, मॉर्चरी सर्विस के ऊपर जीएसटी नहीं है। फिर भी वो डोल मोल करके वो डालेंगे और अगले शव के ऊपर भी डालोगे। अरे थोड़ा मन ऐसे बात करने में कैसे चलता है? They are fully exempt from GST. ठीक है सर, मगर अरे भैया आप ठहरो ना, आपकी इतना क्या जल्दबाजी है? जीएसटी क्रिमेटोरियम के संबंध में ये बात रखना चाह रही हूं। कंस्ट्रक्शन दैट मे बी कैरिड आउट फॉर अ क्रिमेटोरियम, एक नया क्रिमेटोरियम बनाना चाहती हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ले आ रही हो, स्टैंडर्ड रेट उनके ऊपर बनाने वाले आइटम्स जो आता है उसके ऊपर लगाते हैं, क्योंकि वैसे भी उनका रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स भरकर ही आप ले आ रहे हो। अगर इसमें टैक्स नहीं लगाते हैं तो बनाने वाले को नुकसान होगा, वो टैक्स क्रेडिट ले नहीं सकते हैं। इसीलिए क्रिमेटोरियम के लिए जब इक्विपमेंट्स ले आते हो उसके ऊपर टैक्स, क्योंकि वो बनाने वाले ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, नहीं तो आपको नुकसान में आ जाएगा। सो ये समझना चाहिए। इसमें थोड़ा पलटवार करके, गोल मोल करके, बेरहम बात करना, शव के ऊपर डालोगे क्या? अरे आपके मंत्री भी बैठे हैं जी उधर। एक और विषय सर, एक और विषय ये जरूर है, ये बोलते हैं कि चावल के ऊपर, दूध के ऊपर, लस्सी के ऊपर क्या आप डाल रही हो टैक्स? नहीं डाला टैक्स। लूज में खरीदो उसमें टैक्स नहीं है। ये जरूर सुनने लायक विषय है, आप सुनिए। क्या जीएसटी काउंसिल इस बार दूध के ऊपर, लस्सी के ऊपर, चावल के ऊपर
मुरमुरा आलू जो बोलते हैं पफ्ड राइस, उसके चिवड़ा के ऊपर अभी डाला है क्या? हम तो बोल रहे हैं ये लूज में खरीदो, टैक्स नहीं है, प्री पैक्ड है, ब्रांडेड है तो टैक्स है। मगर जीएसटी आने से पहले क्या था हालात सर? एक बार मैं ध्यान दिलाना चाह रही हूं, आइटम वाइज बोल रही हूं, दाल के ऊपर, गेहूं के ऊपर, चावल के ऊपर, मैदा आटा के ऊपर, सूजी रवा के ऊपर, बेसन के ऊपर, पनीर के ऊपर, दही लस्सी के ऊपर। इसमें बहुत सारे मंत्रीगण सदस्यगण नहीं है। जीएसटी आने से पहले पंजाब में, पंजाब में सर दाल के ऊपर 1.5 था टैक्स वैट, गेहूं के ऊपर परचेस टैक्स था जो 5.5% था, चावल के ऊपर 5.5%, मैदा के ऊपर 6.25%, सूजी रवा के ऊपर 6.25%, बेसन के ऊपर 1.5, पनीर के ऊपर 6.25। पंजाब प्री जीएसटी वैट बात करते हैं अभी। तमिलनाडु पल्सेस के ऊपर 5%, आटा मैदा के ऊपर 5, सूजी रवा के ऊपर 5, बेसन के ऊपर 5, पनीर के ऊपर 5%। वेस्ट बंगाल में भी पनीर के ऊपर 5% था। ये महंगाई इसीलिए कम हो रही है, ये सब प्री जीएसटी वाले विषय है भाई, थोड़ा सुन लो सही। तेलंगाना के ऊपर, तेलंगाना के ऊपर पेंसिल्स के ऊपर 5%, गेहूं के ऊपर 5%, तेलंगाना में पल्सेस के ऊपर, दाल के ऊपर 5%। अब बीच में क्यों है भाई? माननीय सदस्य प्लीज आपस में बात न करें। सर तेलंगाना में दाल के ऊपर 5%, वीट गेहूं के ऊपर 5, चावल के ऊपर 5, आटा मैदा के ऊपर 5, सूजी रवा के ऊपर 5, बेसन के ऊपर 5, पनीर के ऊपर 5% वैट था। सो ये जरा ये सभी स्टेट्स सोच ले कि आज क्या हो रही है। सर आंध्र प्रदेश प्री जीएसटी वैट 5%, हर एक के आइटम के ऊपर, दाल के, गेहूं के, चावल के, मैदा आटा सब के ऊपर। महाराष्ट्र पनीर के ऊपर 6%। सो हर राज्य, सर अपने महदूदी साहब आपके JNK में 14.5% था दही के ऊपर। सो झारखंड में ऐसे हर स्टेट में हुआ करता था जीएसटी। सब मुख्य रूप में हॉस्पिटल, नियम माननीय सदस्य प्लीज। हॉस्पिटल बेड्स के ऊपर बहुत ही मैंने आपको कई बार मौका दिया है, मैं अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं आपको। सदन व्यवस्था से चलता है, प्लीज। हॉस्पिटल बेड के ऊपर सर जीएसटी आईसीयू के ऊपर डाल दिया, हॉस्पिटल बेड के ऊपर डाल दिया। मैं स्पष्ट करना चाह रही हूं सर, जीएसटी काउंसिल हॉस्पिटल रूम रेंट, मगर आईसीयू का नहीं, उसका 5% टैक्स, वो भी अगर 5,000 रुपया से ज्यादा रूम रेंट अगर आप दे रही हो, रूम रेंट 5,000 रुपया पर डे रूम रेंट देने वाले, वैसे रूम रेंट के ऊपर ही जीएसटी है।
और इमरजेंसी सर्विसेज के ऊपर नहीं है, आईसीयू के ऊपर भी नहीं है। ये गलत फहमियां स्प्रेड ना करें सर। बहुत समय हो गए, फिर भी जीएसटी कॉम्पनसेशन के ऊपर भी एक विषय बोलना चाह रही हूं। समाप्त करूं क्या? जीएसटी नहीं चाहिए कॉम्पनसेशन? सर, कॉम्पनसेशन सेस 2026 तक एक्सटेंडेड है। सभी सेस जो स्टेट्स को देना है वो मई 22 तक, मतलब 22 मई तक दे दिया। इस बार बजटरी प्रोविजन भी 1.2 लाख करोड़ का कॉम्पनसेशन का हमने कर रखे हैं और 87,000 करोड़ उसमें से ऑलरेडी स्टेट्स को दे दिए। 14,000 करोड़ इंटरेस्ट ऑन बैक टू बैक लोन जो हमने 2020 में लिया, उसका इंटरेस्ट रेट के लिए हमने दे रहे हैं। सिर्फ एक महीने का जीएसटी कॉम्पनसेशन पेंडिंग है, वो जून का। वो अभी तक हमने इसीलिए नहीं क्लियर किया क्योंकि बहुत सारे स्टेट से उनके एजी से सर्टिफाई होकर के सर्टिफिकेट हमें पहुंचा नहीं है। जब पहुंचेगा तब हम क्लियर कर देंगे उसको भी। इसीलिए जीएसटी के ऊपर पर्टिकुलरली तमिलनाडु ने बोले कि इतने सारे बाकी है वो दे दो। தமிழ்நாடுக்கு ஜிஎஸ்டியில் கொடுக்க வேண்டியது ஜூன் மாதம் ஒரே ஒரு மாதத்துக்கு தான் நிலுவையில் இருக்குது. அதுவுமே 2493 கோடி தான். அதை விட ஜாஸ்தி எதுவுமே இல்லை. ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கு மாத்திரம் இல்லை, எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்கும் அது पेंडिंग। वो जून का कॉम्पनसेशन सर, वो हम ज़रूर एजी का सर्टिफिकेट आने के बाद दे देंगे। मैं बहुत सारे और विषय एटीएम के ऊपर भी बोले लोग कैश हमारे पैसा निकालने में आप टैक्स कर रही हो। बिल्कुल नहीं सर, आपके अपने बैंक के एटीएम में 5 बार महीने में निकालो और दूसरे बैंक के एटीएम से आप ही के अकाउंट निकालो। कुल मिलाकर के 5+5 टाइम आप निकालो एटीएम से, कुछ भी आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। इसीलिए उसमें भी गलत फहमियाँ स्प्रेड ना करें। ऑयल बॉन्ड्स के विषय में ज़रूर कहना चाहिए क्योंकि पिनाकी जी ने ये बात बोले, अरे आप तो हमारे निशिकांत जी को करेक्ट करते हुए बोले नहीं नहीं आप गलत बोल रही हो। मैं सच्चाई रिकॉर्ड में रखना चाह रही हूँ। इन प्रिंसिपल ऑयल बॉन्ड गलत था क्योंकि तब इंप्रेशन लोगों को ये बोला गया कि हम आपका सब्सिडी दे रहे हैं इसीलिए आपके तेल का प्राइस कम होगा, मगर सब्सिडी नहीं दिया। वो ऑयल मार्केट कंपनी के ऊपर बोझ बना करके लोन के ऊपर, बॉन्ड के ऊपर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर डाल दिया। उस समय लगा कि वो पैसा ऑयल मार्केटिंग कंपनी उनको दे रहे हैं जो सरकार बजट के द्वारा देना था, मगर वो पैसा उनके सब्सिडी नहीं है, अभी मोदी जी भरपाई कर रहे हैं उसका। सो तब का सब्सिडी अब का मोदी जी का सब्सिडी बन रही है क्योंकि वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का बॉन्ड जो है उसको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, ना कि वो छोड़ कर चले गए। और कितना है वो 2005 और 6 में ऑयल बॉन्ड कितने इश्यू किए, मतलब कितना खर्च उठाए, लोन उठाए, 17,262। 2006-7 में 24,121, 2007-8 में 20,000 फलना, 2008-9 में 75,000 फलना, 2009-10 में 10,000, कुल मिलाकर के 1,48,186 टोटल बर्डन ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ऊपर। उसको रीपेमेंट कब से शुरू हो रही है? 2014 मोदी जी आने के बाद से शुरू हो रही है और उसमें अमाउंट में बोल रही हूं सर, अभी तक रीपेमेंट ऑफ ऑयल बॉन्ड्स प्रिंसिपल, सिर्फ प्रिंसिपल 3,500 करोड़ 14-15 में। इस बीच में प्रिंसिपल नहीं दिया, इसीलिए शायद पिनाकी जी का गलत फहमी है, कुछ नहीं दिया। अभी 2021-22 में 38,723 करोड़ दे रहे हैं प्रिंसिपल, हम पे कर रहे हैं उसको। और 22-23 इस साल में कुछ प्रिंसिपल नहीं पे करना, इंटरेस्ट करेंगे।
अगले साल 15,586 करोड़ हम पे करना है। 24-25 में 39,000 हम पे करना है। 25-26 में 36,913 हम पे करना है। कुल मिलाकर के 92,200 करोड़ मोदी सरकार दे रही है ऑयल बॉन्ड के लिए ऊपर। पिनाकी मिश्रा जी करेक्ट कर लें। और इसमें इंटरेस्ट का पेमेंट सर, ये तो हो गए प्रिंसिपल का। 2014-15 से 10,255, 9,989 एक एक करके इस साल तक 79,958 सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट उसमें गया। किसके माल है? उस समय बोले कि हम दे रहे हैं सब्सिडी, मोदी जी उसका पेमेंट कर रहे हैं। सो ऑयल बॉन्ड के वजह से हमारे ऊपर बर्डन नहीं है। ये पैसा गरीब के लिए जाने के लिए हमारे हाथ में रहता नहीं तो ये प्रिंसिपली रॉन्ग। ऑयल बॉन्ड फ्यूचर के जनरेशंस के ऊपर बर्डन लगा करके, मगर आप श्रेय लेकर के चले गए। हमने तो आपके ऑयल प्राइस के लिए सब्सिडी दिए, गलत है। इट वॉज टोटली गलत। सो आई वॉन्ट टू कम टू एन एंड सर। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए ये मैं ज़रूर कोशिश किए सब लोग का प्रश्न को जवाब दूंगी। सिर्फ एक विषय बार बार हमारे ऊपर डालते हैं, इसीलिए मैं बात करती हूँ। मोदी सरकार अंबानी अदानी के लिए काम करता है, आप लोग यही करते हो। सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहती हूँ सर। आप राजस्थान से हैं, सोलार प्रोजेक्ट राजस्थान में इस साल जून 11 तारीख 2022 में और इससे पहले दिसंबर 15 2021 में 21 में अशोक गहलोत जी, मैं नाम ले रही हूं, क्षमा कीजिए, सीएम साहब है राजस्थान का, गलत नहीं है, उनको डिसीजन उनके कैबिनेट के द्वारा लेकर के 2397 हेक्टेयर्स गवर्नमेंट ने लैंड दिया है अदानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग के लिए। राजस्थान सरकार ने, जो कि कांग्रेस के सरकार है, अदानी जी को लैंड सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं। हमें अदानी अंबानी ऐसे चक्कर में हम नहीं आ रहे, आप बुला बुला करके दे रही हो अदानी जी को। और दूसरा, दिसंबर 15 2021 में 2021 में एक अदानी जी के रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के साथ एमओयू साइन भी हुआ। 1500 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पार्क के लिए जॉइंट पार्टनरशिप है। ये सब क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है? 2 विषय क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक दिन पहले, ये एग्रीमेंट के एक दिन पहले, माननीय लोकसभा सांसद पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, अभी नहीं पूर्व अध्यक्ष, जयपुर में जाकर के उधर मोदी गवर्नमेंट अदानी और अंबानी को फेवर करता है ऐसे पब्लिक मीटिंग में कहकर निकल गए। अगले दिन गहलोत जी एग्री कर रहे हैं अंबानी साहब के साथ, अदानी साहब के साथ। सो उनके अपने ही चीफ मिनिस्टर अंबानी अदानी को फेवर करते हुए इतने काम कर रहे हैं, जो कि माननीय फॉर्मर प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी उधर जाकर जयपुर में स्टेटमेंट दिए, उसको परवाह नहीं करते हुए अगले दिन अदानी के साथ 2 एग्रीमेंट हुआ है। और कांग्रेस वाले बार बार इधर हमें टोकते हैं कि अंबानी अदानी सरकार, अरे भैया आप बुला कर दिए। ऐसे ही डीएमके जो कांग्रेस के अलायंस में है, பெரிய பெரிய அம்பானி அதானிக்கு தான் நீங்க எல்லாம் பண்றீங்க. அரே பையா, உங்க நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் 59 MOU சைன் ஆயிருக்குது. 35,000 கோடிக்கு डेटा सेंटर सेटअप பண்றீங்க अदानियोட சேர்ந்துக்கிட்டு. तमिलनाडु में 59 MOU साइन किया गया है, जिसमें 35,208 करोड़ का डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए अदानी के साथ वो भी हाथ मिला रहे हैं भाई। सो तमिलनाडु कांग्रेस और डीएमके के सरकार है, उधर भी वो कर रहे हैं, मगर बार बार हमें बोलते हैं। दूसरा, एक और तमिलनाडु में
दूसरा सेकेंड फेज का डेटा सेंटर भी वो तमिलनाडु में अडानी ग्रुप ही कर रहे हैं सर। सो जब याद दिलाते हैं कांग्रेस वाले हमें अदानी अदानी करके, ये सब उदाहरण उनके सामने रखना चाहिए, भैया ये कौन है। सो सर मैं ज़्यादा नहीं दूंगी, बहुत आप टाइम दिया मुझे। ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी खुद बात बोले कि ये फ्रीबीज का कल्चर से हम निकलना चाहिए। स्टेट्स को पैसा नहीं दे रहे हैं, स्टेट्स को पैसा नहीं दे रहे बोलने वाले, कम से कम हमारे जनरेटिंग कंपनीज को, जेनकोस को, वैसे ही डिस्कॉम्स को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो बकाया है वो क्लियर कर दें। वो लोग भी पावर जनरेट करके आपको कैसे देंगे, नहीं तो जनता को पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चाहिए, रोक सकेंगे क्या? क्योंकि आपके बकाया तमिलनाडु 20,990 करोड़ जेनकोस को बाकी, तेलंगाना 7,388 करोड़ बाकी, राजस्थान 5,043 करोड़ बकाया, झारखंड 3,698 करोड़ जेनकोस के लिए। डिस्कॉम्स को आए तेलंगाना 11,935 करोड़, तमिलनाडु 3,677 करोड़, पंजाब 2,612 करोड़, राजस्थान 1,791 करोड़, केरला 1,278 करोड़। ये सब बकाया उनका है, स्टेट ये डिस्कॉम्स को, जेनको को देना है। ऐसे सब्सिडी भी देते हैं डिस्कॉम्स, वो सब्सिडी भी वापस नहीं दे रहे। वो रिसीवेबल के नाते डिस्कॉम्स के पास पंजाब से 9,000 करोड़, राजस्थान से 15,597 करोड़। ये सब बकाया कौन देंगे सर? छत्तीसगढ़ 2,699 करोड़। सो भारत के अर्थव्यवस्था के ऊपर अगर हम बात करते हैं, इन सभी दिक्कत के बावजूद भी, ग्लोबल दिक्कत, देश के अंदर दिक्कत, इन सभी दिक्कत के बावजूद भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। जीएसटी के बारे में बात करने वाले बार बार मैं हाथ जोड़ करके पूछती हूं, मांगती हूं और समझाने के लिए कोशिश कर रही हूं। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनली गिवन बॉडी है जिसमें सभी स्टेट्स और केंद्र सरकार बैठते हैं। उसमें निर्णय मोदी जी नहीं करते, स्टेट्स का फाइनेंस मिनिस्टर सब बैठ करके करते हैं। उनके अपने राज्य में जा करके वो सच्चाई बोलना चाहिए, नहीं बोलते अंदर एक विषय बाहर दूसरे ना करना। ये भी मेरा विनम्र रिक्वेस्ट, और बहुत धन्यवाद सर। Holidays nale adu namma GT Holidays da. GT Holidays, South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays.